गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। नमस्कार। मैं डॉक्टर विपिन कुमार श्रीवास्तव, असिस्टेंट मैकेनिकल इंजीनियर ट्रेनिंग का टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर में कार्यरत हूँ और मैं टीटीसी का वाइस प्रिंसिपल भी हूँ। आज हमारा सेशन जो है हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बेसिक्स ऑफ हीट ट्रीटमेंट्स पे बात करेंगे। Actually, heat treatment is nothing but it's a process of treating metals. For what purpose? Because treatment is done for having a particular purpose. So when we treat the metals having some purpose, that purpose might be to enhance the property of the metal, to change the property of the metal. Property might be physical, mechanical, chemical, magnetic property, whatever the property. When there is need to change the property of a particular product with the application of heat, that is known as the heat treatment process. We treat the metal with the application of heat, that is the heat treatment. In heat treatment, I will show you the basic cycles of heat treatment. Heat treatment is commonly used to alter or strengthen materials structure through a heating and cooling process. As I told you, we just treat the metal to change its property with the application of heat. That is heat treatment process. In heat treatment process, first we heat the metal up to a certain temperature. Then we put at isothermally, we put at that temperature to the homogenize of the structure, and then we cool it. The heating and cooling should be controlled and it should be not sudden, not interrupt, not unregular. What the pattern you follow in heating, similar pattern you should follow in the cooling. During manufacturing, some material might need to be involved in procedures that alter their grain structure. Heat treatments are a way of using controlled heating and cooling, as I told you, controlled heating and cooling procedures to change metals' physical property, mechanical property, and improve them to be used in a large range of industry. उनका एप्लीकेशन बढ़ा देते हैं हम हीट ट्रीटमेंट करके, उनका एप्लीकेशन बढ़ा देते हैं, प्रयोग उनका वाइडन हो जाता है, उनका एप्लीकेशन वाइडन हो जाता है, ज्यादा जगह हम उनको यूज कर सकते हैं उस मेटल को बाय एप्लीकेशन ऑफ हीट ट्रीटमेंट. These heat treatments vary depending on the metal type and the mechanical properties that are required for the parts function. जैसे जिस पार्ट्स का, जिस कंपोनेंट का हमको हीट ट्रीटमेंट करना है, वो उसका इंड एप्लीकेशन क्या है, कहां पर उसका यूज है, किस तरह का प्रयोग, किस तरह का लोड उस पर आना है, किस तरह कार्य उस पर होना है, वेयर दैट देयर मे बी वाइब्रेटिंग लोड, there will be static load, whatever load that particular part will suffer from which load, उसके अकॉर्डिंगली हम इसको हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस को सेलेक्ट करते हैं. और ये मटेरियल पे भी डिपेंड करता है, कौन सा मेटल है, किस तरह की ट्रीटमेंट हमें करना चाहिए किस मेटल पर. जैसे हमारे यहाँ कैम साफ्ट है, 10 सीरीज स्टील है वो, एंड सिलेंडर ब्लॉक हमारा है वो माइक्रोलैंड स्टील है.
तो हम एसआर करते हैं, हीट ट्रीटमेंट करते हैं, एनलिंग करते हैं दोनों का, तो दोनों का अलग अलग टेम्परेचर है, अलग अलग सोकिंग टेम्परेचर है, कूलिंग टेम्परेचर अलग अलग है। तो इसलिए किस तरह का हमें क्या करना है उसमें, ये डिपेंड करता है मटेरियल पर और उसके फंक्शन पर, यूज पर। इट इज इसेंशियल दैट करेक्ट हीट ट्रीटमेंट प्रोसीजर्स आर फॉलो टू इंश्योर द मेटल मीट्स द स्पेसिफाइड स्ट्रेंथ रिक्वायरमेंट। अगर हमने ठीक हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस का चुनाव किया है और ठीक से हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस किया गया विदाउट लैप्सिंग द साइकिल, तो definitely that will provide the particular property which one is the required for the particular heat treatment process. So this is all about heat treatment. This is the basics of the heat treatment. इसलिए मैं बताऊं आपको कि हीट ट्रीटमेंट का मतलब ये हुआ कि जहां हर इंडस्ट्री, कोई भी इंडस्ट्री ऐसी नहीं है जहां पर हम हीट ट्रीटमेंट का प्रयोग न करते हो, उस प्रोसेस का प्रयोग न हो, फर्नेस जहां पर न हो, क्योंकि अगर नहीं है तो वो बाहर से कराएगा, वो हायर करेगा। तो अपना अपना अपनी भी व्यवस्था है, जहां जिसका हिसाब किताब है। जैसे छोटी फैक्ट्री है तो अपना कंपोनेंट को बाहर से भेज के हीट ट्रीटमेंट करा लेते हैं। किस तरह की हीट ट्रीटमेंट चाहिए उनका, क्या उनको पूरा पूरा कोर में, पूरे पार्ट में डेवलप करना है उस प्रॉपर्टी को, खाली सरफेस पे डेवलप करना है प्रॉपर्टी को। तो ये डिपेंड करता है कि विच टाइप ऑफ हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस यू आर गोइंग टू do and what is the requirement of the function of the particular item, particular product, उस पर डिपेंड करता है हीट ट्रीटमेंट। सो दिस इज द बेसिक्स ऑफ द हीट ट्रीटमेंट साइकिल। ये हमारा हीट ट्रीटमेंट का साइकिल है, इसी पे पूरा हमारा हीट ट्रीटमेंट बेस करता है। पूरा अगर कहा जाए तो पूरी मेटलर्जी मेरी इसी पे बेस करती है। देखिए हीट ट्रीटमेंट में आपको बता दूं, हीट ट्रीटमेंट का मतलब ये हुआ कि हम मेटल पे प्रोसेस करते हैं, मेटल पे हम उसका उस मेटल का ट्रीटमेंट करने जा रहे हैं। एंड जहां पर मेटल की बात आ जाती है, मेटल स्टडी की बात आती है, दैट माइट बी इंटरनल स्ट्रक्चर, दैट माइट बी बाहर का शेप, जो वट एवर इफ यू आर स्टडिंग द अबाउट द मेटल्स, दैट स्टडी इज डील्स विद द मेटलर्जी। सो मेटलर्जी इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स द स्टडी ऑफ मेटल्स। तो मैं बताऊं मेटल्स का जो माइक्रो स्ट्रक्चर है, उसकी प्रॉपर्टी है, ये सब जो स्टडी होता है, ये दो तरह से हम मेटलर्जी में स्टडी करते हैं। मेटलर्जी को हमने, पूरे मेटलर्जी को हमने दो भागों में बांटा हुआ है। एक तो फर्स्ट वन इज द प्रोसेस मेटलर्जी एंड सेकेंड वन इज द फिजिकल मेटलर्जी। तो प्रोसेस मेटलर्जी में क्या मतलब हुआ कि जैसे हम ओर्स निकाल के, ओर्स से हम पासिंग थ्रू द डिफरेंट रिफाइनिंग प्रोसेस, उसको गलाते हैं, पिघलाते हैं, रिफाइन करते हैं, सॉलिडिफाई होता है, फाइनल प्रोडक्ट मिलता है। सो दिस इज द प्रोसेस मेटलर्जी। एंड व्हेन वी don't change the shape of the particular product, we just change its property from the without changing its physical shape, that is the physical metallurgy. तो फिजिकल मेटलर्जी में जैसे हमारा हीट ट्रीटमेंट आता है, हीट ट्रीटमेंट फिजिकल मेटलर्जी है, वेल्डिंग जैसे हमारा है, कास्टिंग है, ये प्रोसेस मेटलर्जी है। सो इन फिजिकल मेटलर्जी वी जस्ट अप्लाई द हीट विदाउट चेंजिंग इट्स शेप्स। एक पर्टिकुलर हर टेम्परेचर पर, पर्टिकुलर टेम्परेचर पर उसका फेस चेंज होता जाता है। तो मेटल साइंस में बताऊं आपको, दो तरह के मेटल, हम मेटल्स, प्योर मेटल्स का कोई एप्लीकेशन नहीं है इन द इंडस्ट्री, बिकॉज दैट हैज नो सो दैट मच ऑफ स्ट्रेंथ। हमने एलॉय को यूज किया है। प्योर मेटल्स में हमने कुछ मेटल्स, नॉन मेटल्स मिला के उसको एलॉय बना दिया। सो दैट इज, देयर इज प्योर मेटल्स एंड एलॉयज। बाइनरी एलॉय 2 मेटल मिला है या नॉन मेटल मिला है, टर्सरी एलॉय 3 मेटल नॉन मेटल मिला हुआ है। इस तरह से मिला के उनको हम एक एलॉय बना देते हैं एंड दैट एलॉय प्रोसेस पर्टिकुलर स्ट्रेंथ, उसका प्रॉपर्टी उसकी अच्छी बन जाती, उसको हम यूज करते हैं इंडस्ट्री में। तो इसलिए हमारा जो स्टील है, स्टील इज द एलॉय ऑफ आयरन एंड कार्बन। आयरन एंड कार्बन का इसमें एलॉय है। इसमें हमने प्योर आयरन में हमने कार्बन मिलाया है, मैग्नीज मिला दिया है और सिलिकॉन मिला दिया, और क्या बोलते हैं मैग्नीज, सिलिकॉन और कार्बन एंड फास्फोरस एंड सल्फर।
तो सल्फर और फास्फोरस तो मिलाया नहीं जाता, ये तो उसकी गंदगी है, दोज आर द इम्प्योरिटीज, उसको हम निकाल नहीं सकते। तो उसका एक लिमिट हमने कर दिया है कि 0.04% तक ही ये रहता है उसमें, अगर स्टील में, किसी भी स्टील में इससे ऊपर होएगा तो उसका वो दैट विल क्रिएट द हिंड्रेंस, दैट विल क्रिएट द प्रॉब्लम। ओके, सो दिस इज द metals, about the metals, and now we come on the topic heat treatment. This is the heat treatment, basic cycle of the heat treatment. If you want to heat treatment some product, some component for a particular property change, then first we apply heat gradually, we heat it gradually, increasing some range of the temperature like 125 डिग्री सेंटीग्रेड पर आवर, फिर उसके बाद 3 घंटे के बाद 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर आवर, फिर 5 घंटे के बाद 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर आवर। इस तरह से करके हमने धीरे धीरे उसको हीट किया। अब देखो जैसे ये है, हमने दिखाया आपको एक साइकिल हमने दिखाया है, दिस इज स्ट्रेस रिलीविंग साइकिल है, ये सिलेंडर ब्लॉक का स्ट्रेस रिलीव करते हैं। आप देखो इसमें कि हमने गर्म करना शुरू किया यहाँ से, और धीरे धीरे 640 डिग्री सेंटीग्रेड हम पहुंच गए। ये 14 घंटे में हमने ये हीट किया है। अब आप समझ लो, पहले 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर आवर, फिर 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर आवर, फिर 70 डिग्री से, व्हाटएवर द टेम्परेचर इज, सो ग्रेजुअली वी हीट इट ग्रेजुअली। हम 14 घंटे में हम पहुंच गए 640 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इसके बाद आप समझो यहां पर हम क्या करते हैं कि इस टेम्परेचर पर सोकिंग, दिस इज आइसोथर्मल हीटिंग। आइसोथर्मल हीटिंग इसलिए की जाती है कि प्रोडक्ट जो है या कंपोनेंट, कोई भी स्ट्रक्चर है, वो डिफरेंट थिकनेस ऑफ प्लेट से मिलकर बनाया जाता है। उसमें प्लेट की मोटाई भिन्न भिन्न होती है, अलग अलग होती है। तो जब आप गर्म करने जा रहे हैं, पहले तो हम धीरे धीरे गर्म करते हैं कि हर जगह हीट बराबर पहुंच जाए, और जब पहुंच गए तो उसको थोड़ी देर के लिए, जब जिस टेम्परेचर पर हमको रुकना है, जिस फेस को हमें चेंज करना है, वहां पर हमने रोक दिया उसको बोलते हैं, ये सारा कंपोनेंट आपका उस टेम्परेचर पे आ जाएगा। जैसे आप देखो ये देख रहे हैं ना, व्हाट इज दिस, दिस इज, देखिए इसमें अलग अलग प्लेट साइज लगा हुआ है, डिफरेंट साइज की प्लेट है, डिफरेंट साइज। जब हम इसको हीट करेंगे तो एक बैग सब जगह बराबर हीट एक फेस में सब नहीं पहुंच पाएंगे, हमको इन सबको ले जाना है। आप समझो, सबको हमको ले जाना है, क्या बोलते हैं, परलाइटिक फेस में ले जाना है, कोर्स परलाइट्स में बनाना है हमको, सबको होमोजेनाइज हीटिंग होनी है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले हम पर्टिकुलर उस टेम्परेचर पहुंच गए, उसके बाद हमने उस टेम्परेचर को रोक दिया, उसी टेम्परेचर पर गर्मी हीट चल दिया, हीट देते रहे, फिर धीरे धीरे सारा कुछ होमोजेनाइज हीटिंग हो जाएगा और सब बदल जाएगा ऑस्टेनाइट में, व्हाट एवर फेस यू वांट टू चेंज। तो उस फेस में जब बदल जाएगा तब आप अगला, जैसे ये सब पूरा उस फेस में चेंज हो गया, अब हम करेंगे इसको कूलिंग। जब हम कूलिंग करते हैं तो कूलिंग, समझ लीजिए, कूलिंग का बहुत बड़ा रोल है हीट ट्रीटमेंट में। हमने आपको बता दिया हीटिंग एंड कूलिंग, ये दो ऐसे प्रोसेस हैं जो कि विच कंट्रोल्स द मेटलर्जी। हीटिंग आपने ठीक से नहीं किया तो दिक्कत हो जाएगी, कूलिंग ठीक से नहीं किया तो दिक्कत हो जाएगी। तो कूलिंग, अब आपने सोकिंग मैंने समझा दिया आपको, व्हाट इज हीटिंग एंड सोकिंग दिखा दिया मैंने, क्यों सोकिंग करते हैं, क्यों आइसोथर्मल, दिस इज आइसोथर्मल हीटिंग करते हैं, क्यों आइसोथर्मल हीटिंग करते हैं। और उसके बाद जो है आइसोथर्मल हीटिंग के बाद हम देखिए ये 250 डिग्री सेंटीग्रेड हम इसको गर्म कर, यहाँ फर्नेस कूलिंग करते हैं। कूलिंग का फंडा देखिए, अगर कूलिंग हम देखिए इस तरह से कि ये यहाँ देखिए, यहाँ तक हम पहुंचे हैं यूटेक्टॉइड फेस में, अब यहाँ से हम कूल करते हैं। तो कूल अगर करते हैं, अगर हम फर्नेस कूलिंग करते हैं लाइक दिस, दिस इज टाइम, दिस इज टाइम, दिस इज टेम्परेचर। तो इस टेम्परेचर पर हम पहुंच के अगर हम इमीडिएट कूलिंग कर दिए, इसको वाटर क्वेंचिंग करते हैं, वाटर में क्वेंच कर दिया, छंद पानी में डाल दिया, तो हमको मिल जाएगा मार्टेनसाइट और सीमेंटाइट व्हाइट, दिख रहे हैं, मार्टेनसाइट मिल जाएगा। मार्टेनसाइट का मतलब ये होता है कि दिस इज हार्डेस्ट एलिमेंट ऑफ दिस फेस डायग्राम, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एंड हार्डेस्ट मार्टेनसाइट होता है। तो मार्टेनसाइट इज नो मोर रिक्वायरमेंट, इसको मार्टेनसाइट जब बन जाता है तो उसमें हमें प्रोसेस करना पड़ता है टेम्परिंग का, मैं दिखाऊंगा आपको। तो उससे हमको, तो इसलिए क्वेंचिंग नहीं करना है, हमें क्या करना है, हमने फर्नेस कूल किया, ये धीरे धीरे ठंडा हुआ, यहाँ देखिए कोर्स परलाइट बन गया। जब ये परलाइट बन गया तो आप समझ लो, उसके बाद देखिए फाइन परलाइट बनता है, और जल्दी ठंडा और जल्दी कर दिया तो वेरी फाइन परलाइट बन जाएगा, धीरे धीरे उधर बढ़ता जा रहा है। अब हमने क्वेंचिंग कर दिया तो ये सारे स्टेज नहीं मिल पाएंगे इससे,
ये सब बीच में रह जाए, खत्म, मिलेगा ही नहीं, ये डायरेक्ट इसमें पहुंच जाएगा मार्टेनसाइट में। तो दिस इज द हीटिंग पैटर्न। तो हीटिंग को हम बहुत हिसाब से करना पड़ेगा, हमें एक्चुअली क्या चाहिए, किस तरह की हीटिंग हमको करना है। तो यहाँ पर हम देखिए हमने हीट किया, इसको फर्नेस हीटिंग करते हैं। फर्नेस हीटिंग हमने आपको दिखाया कि फर्नेस हीटिंग के बाद इसका स्ट्रक्चर मशीनिंग के लिए बहुत उपयुक्त हो जाता है, बिकॉज हम सिलेंडर ब्लॉक को हीट ट्रीटमेंट करने के बाद हम मशीन सेक्शन देते हैं, मशीनिंग होता है उसका। तो उस मशीनिंग के लिए हम कोर्स परलाइट में इसको चेंज कर देते हैं, एक बात। दूसरी बात, हम फर्नेस कूलिंग इसलिए भी करते हैं, यहाँ पर हम स्ट्रक्चर चेंज तो थोड़ा सा होता है, कोर्स परलाइट में जरा सा स्ट्रक्चर चेंज हुआ, प्रॉपर्टी इसमें प्रॉपर्टी नहीं चेंज होती। इसमें जो डिस्टॉर्टेड स्ट्रक्चर है, जैसे वेल्डिंग किया आपने, सब मेल्ट किया फिर सॉलिडिफाई हुआ, तो सब उसका जो ग्रेन्स है सब डिस्टॉर्ट हो चुका है, जगह जगह पर लोकलाइज स्ट्रेस डेवलप हो गए हैं। उसको हम बोलते हैं, जब मेल्ट करके जब सॉलिड करता है कोई भी चीज, उसमें स्ट्रेस डेवलप होता है। उस स्ट्रेस में बोलता हूं, हम लोग बोलते हैं इंटरनल लॉकअप स्ट्रेसेस या रेसिडुअल स्ट्रेसेस। इसको हमको निकालने के लिए हम हीट ट्रीटमेंट ये करते हैं, इस तरह से कूलिंग करते हैं धीरे धीरे। नहीं मशीनिंग करोगे तो मशीनिंग के टाइम में वेल्ड ज्वाइंट आपका खुल जाएगा, क्रैक कर जाएगा। Okay, so this is the basic cycle: heating, soaking and cooling of the heat treatment. This is temperature, this is time. Okay, now objective of heat treatment: increase hardness, wear and abrasion resistance and cutting ability of steel. हार्डनेस बढ़ाता है, wear and abrasion resistance। हम बता रहे हैं किस तरह के हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस आप करने जा रहे हो। अगर हार्डनिंग कर रहे हो तो हार्डनेस बढ़ जाएगा, सरफेस हार्डनिंग करोगे तो wear and abrasion resistance, उसके सरफेस पर अब्रेशन रेजिस्टेंट, उसका सरफेस घिसेगा नहीं। कटिंग एबिलिटी आप स्टील करने हैं तो ये अलग प्रॉपर्टी हो गई आपको। रीसॉफ्टनिंग द हार्डेंड स्टील टेम्परिंग टू एडजस्ट मैकेनिकल, एलिमिनेट इंटरनल स्ट्रेस, जैसा मैंने आपको दिखाया। स्टेबलाइज द स्टील, रिफाइन ग्रेन साइज, इंक्रीज मशीनबिलिटी, एलिमिनेट गैसेज लाइक हाइड्रोजन विच इम्ब्रिटल स्टील। अगर रोलिंग के टाइम में हाइड्रोजन अगर घुस गई उसके अंदर, जैसे वेल्डिंग के टाइम में, वेल्डिंग में हाइड्रोजन इज द पॉइजन, हाइड्रोजन कैंसर है उसका, हाइड्रोजन अगर घुस गई उसके अंदर तो वो क्रैक डेवलप कर देती है, तो इसलिए इसको एलिमिनेट करता है। अगर धीरे धीरे ठंडा करोगे तो हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगी। अगर हीटिंग के टाइम में, रोलिंग के टाइम में या वेल्डिंग के टाइम में मान लो वेल्ड करते हो, व्हाट इज वेल्ड, दिस इज द प्योर मोल्टेन मेटल। मोल्टेन मेटल में अगर आपका हाइड्रोजन एटमॉस्फेयर से हाइड्रोजन घुस गई, वो जब मेटल जब सॉलिडिफाई होगा, अगर धीरे धीरे कूल नहीं हुआ तो हाइड्रोजन उसी फंसी रह जाएगी। अब फंसी रह जाएगी, दूसरी हाइड्रोजन मिलेगी उसको, तो हाइड्रोजन अणु मॉलिक्यूल बन जाएगा, वो आयन मॉलिक्यूल बन जाएगा, जिसमें क्रैक क्रिएट करेगा। दिस विल एक्सपैंड, चेंज कंपोजिशन ऑफ सरफेस बाय कार्बोनाइजिंग हम करते हैं, कार्बन रिच उसमें डालते हैं, नाइट्राइडिंग है, साइनाइडिंग, ये सब हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस है। ठीक है, सो ऑब्जेक्टिव ऑफ द हीट ट्रीटमेंट, दीज आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ द हीट ट्रीटमेंट्स। ये आयरन कार्बन डायग्राम देखिए, आयरन कार्बन डायग्राम फॉर्म द बेसिस ऑफ हीट ट्रीटमेंट। इसी पे पूरा आप देखो ये साइकिल, इसमें देखो ये आयरन कार्बन डायग्राम है, इसको आयरन कार्बन डायग्राम बोलते हैं, आयरन कार्बाइड डायग्राम बोलते हैं, आयरन कार्बन इक्विलिब्रियम डायग्राम बोलते हैं। क्योंकि बिकॉज दिस इज द फेज डायग्राम, दिस इज द फेज डायग्राम ऑफ बिटवीन ऑफ आयरन एंड कार्बन, प्योर आयरन एंड कार्बन, यू कैन से फेरस मेटल। So through this diagram we study the structure, whatever phase changes at different temperature in steel and cast iron, because in ferrous alloys, in steel there are two parts over there. First one is the steel and second one is the cast iron. 2% carbon pure iron में, this is pure iron line, this is 8% कार्बन। अगर हम 2% कार्बन मिला देते हैं इसमें तो ये हो जाएगा आपका स्टील, और 2% से ज्यादा जाएगा तो ये हो जाएगा कास्ट आयरन। तो हम हीट ट्रीटमेंट स्टील की बात करते हैं। स्टील में आप देखो दिस इज ये अल्फा प्योर आयरन है। ये देखो हर मेटल में, कोई भी मेटल हो उसमें दो टेम्परेचर होता है, LCT एंड UCT। LCT बोलते हैं लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर को, UCT बोलते हैं अपर क्रिटिकल टेम्परेचर। सबकी प्रॉपर्टी होती है, हर की, ह्यूमंस की भी प्रॉपर्टी होती है कि लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर कहाँ से उसका परिवर्तन, गुस्सा कहाँ से उसका शुरू होगा, कहाँ वो खत्म हो जाएगा। तो जैसे मेटल में हमने हीट करना शुरू किया रूम टेम्परेचर, दिस वाज द रूम टेम्परेचर। यहाँ पर परलाइट फेराइट था इसमें यूटेक्टाइड में,
और इसको बोलते हैं यूटेक्टिक, हाइपर यूटेक्टाइड और हाइपोयूटेक्टिक। तो यहाँ पर देखो परलाइट एंड फेराइट है, यहाँ परलाइट एंड सीमेंटाइट है, ठीक है। जब हम यहाँ गर्म करना शुरू करते हैं तो जब रूम टेम्परेचर पर स्टील रहता है तो उसमें परलाइट एंड फेराइट रहता है। अगर इस रेंज में है, इस रेंज में है तो ये रहेगा। हम इस रेंज की बात करते हैं। देखिए गर्म करते 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 एक टेम्परेचर आएगा 723 डिग्री सेंटीग्रेड को बोलते हैं। दिस इज एलसीटी, लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर। यहां से प्रॉपर्टी चेंज होना शुरू हो जाती है, फेस चेंज होना शुरू होता है, यहां फेस चेंज होना शुरू होता है। यहां फेराइट था, फेराइट परिवर्तन शुरू हो जाएगा, यहां गामा ऑस्टेनाइट बनना शुरू हो जाएगा, धीरे धीरे ऑस्टेनाइट चेंज होना शुरू हो जाएगा और चलते चलते यहां पहुंचेगा। यहां के बाद ये पूरा ऑस्टेनाइट बदल जाएगा। तो यहां से शुरू होता है, यहां खत्म हो जाता है परिवर्तन। तो इसको बोलते हैं यूसीटी, अपर क्रिटिकल टेम्परेचर। इसको बोलते हैं लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ प्योर आयरन। दिस इज प्योर आयरन। तो 723 डिग्री सेंटीग्रेड ये है और 910 डिग्री सेंटीग्रेड ये है, ठीक है। तो ये हो गया आपका एलसीटी एंड यूसीटी ऑफ प्योर आयरन। तो इस तरह से, अच्छा जहां पर एलॉय की बात है, एलॉय में हमेशा रेंज होता है, यहां शुरू होगा यहां खत्म होगा, रेंज की बात करते हैं। लेकिन प्योर आयरन में एलसीटी यूसीटी फिक्स होता है। अब जैसे ये एलॉय है, मान लो यहां पर मैं लेता हूं, इस पॉइंट पे लेता हूं, यहां पर ये कार्बन का परसेंटेज हो गया और ये टेम्परेचर हो गया। तो यहां ये हो गया यूसीटी, ये हो गया एलसीटी। तो ये कहने का मतलब मेरे हुआ कि आयरन कार्बन इक्विलिब्रियम डायग्राम से पूरा हमारा, देखो दिस इज द गीता ऑफ द मेटलर्जिस्ट। मेटलर्जिस्ट के लिए गीता कहा जाता है इसको, क्योंकि सारे मेटलर्जिस्ट सारा कुछ इसी से डिपेंड होता है। इसमें देखिए 3 हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, 1, 2 एंड 3, और तीनों हॉरिजॉन्टल लाइन पे फेज चेंज होता है। इनको इनवेरिएंट रिएक्शन बोलते हैं, इनवेरिएंट रिएक्शन बोलते हैं या फेज चेंजिंग डायग्राम, फेज चेंजिंग लाइन बोलते हैं। देखिए फर्स्ट दिस इज, यहां पर हम देख, यहां पे यूटेक्टॉइड बन रहा है, दिस इज यूटेक्टॉइड पॉइंट। सेकेंड दिस इज लिक्विडस से सॉलिडस आने में, देखिए अगर ये लिक्विडस है, इसके यहां लिक्विड है, यहां से सॉलिड में जब यहां आएगा दिस इज प्योर सॉलिड, यहां पूरा सॉलिड बन जाता है इस पर, और इसके बीच में ग्रीस जैसा होता है, लिक्विड ना सॉलिड। तो जब लिक्विडस से सॉलिडस आने में उसको टेम्परेचर का रेंज होगा, यहां शुरू होगा यहां खत्म होगा। लेकिन यहां पर क्या है, दिस इज 1 टेम्परेचर। इसको बोलते हैं यूटेक्टिक पॉइंट। हर मेटल का, हर एलॉय में, हर फेज डायग्राम में एक यूटेक्टिक पॉइंट होता है, दो दैट इज द मिनिमम फ्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ दैट पर्टिकुलर फेज डायग्राम, व्हाट एवर द मेटल इज। उस फेज डायग्राम का जो मिनिमम लिक्विडस से सॉलिडस में आएगा एक टेम्परेचर होगा, जहां रेंज नहीं होगा, उसको हम यूटेक्टिक बोलते हैं। दिस इज यूटेक्टिक। ऐसे सॉलिड में देखो, यहां पर देखो, यहां से परिवर्तन हो रहा है, ये यहां गामा था ऑस्टेनाइट, ऑस्टेनाइट सीमेंटाइट में बदल रहा है, यहां जब पहुंचेगा तो पूरा सीमेंटाइट बदल गया यार, ठीक है। तो यह सीमेंटाइट हो गया। यहां पर देखिए, यहां पर पूरा गामा चेंज हो रहा है अल्फा आयरन में, फेराइट में, इस पर पूरा फेराइट बदल गया। तो और यहां पर फेराइट इधर से और सीमेंटाइट इधर से, इस दोनों का लेयर आता है एक दूसरे के ऊपर, सॉरी ऑस्टेनाइट का लेयर आता है, फेराइट ऑस्टेनाइट का एक लेयर आता है, आते आते धीरे धीरे लेयर बाय लेयर यहां जमता है, इसको बोलते हैं परलाइट। ये हो गया यूटेक्टाइड पॉइंट। तो 0.8% पे यूटेक्टाइड बनता है, 4.3% पर यूटेक्टिक बनता है, ठीक है। और यहां आप देखो, ये है हॉरिजॉन्टल लाइन, ये दिस इज डेल्टा आयरन, ठीक है। ये टेम्परेचर है 1400 डिग्री सेंटीग्रेड, 1400 डिग्री सेंटीग्रेड पर बनता है पेरिटेक्टिक, ये पेरिटेक्टिक रिएक्शन होगा। सो दिस इज यूटेक्टॉइड रिएक्शन, दिस इज यूटेक्टिक रिएक्शन, दिस इज पेरिटेक्टिक रिएक्शन। ये 3 रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी फेज डायग्राम में। हम ज्यादा आयरन डायग्राम पे यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हमें हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस बताना आपको, पर थोड़ा सा बेसिक में दे दिया, बिकॉज दिस इज द बेस ऑफ द हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस। इसमें देखिए 4 वेरिएंट पॉइंट होते हैं। A1, दिस इज A1 लाइन, जब हम हीटिंग ऑफ द मेटल हम स्टडी करेंगे देन दैट विल बी A1। जब हम कूलिंग ऑफ द मेटल स्टडी करेंगे देन विल बी R1। तो R एंड A1, जब असेंट पे जाते हैं तो A1 और नीचे आते हैं तो R1, R से डिनोट करते हैं। सो दिस इज A1 क्रिटिकल पॉइंट लाइन, ये है
right? This is 723 डिग्री सेंटीग्रेड. A2 is the this line. This is A2. इसको बोलते हैं क्यूरी पॉइंट. ये 768 डिग्री सेंटीग्रेड होता है. इसके ऊपर मैग्नेटिज्म खत्म हो जाता है. सो दिस इज द क्यूरी पॉइंट. स्टील को हीट करते 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 जब आप यहां पहुंचोगे 768 पर, यहां पर मैग्नेटिज्म इसका खत्म हो जाएगा, फेराइट का, आयरन का, देखे ना, अल्फा आयरन का. उसके बाद A3, दिस इज 900, ये A3 हो गया. तो A1, A2, A3, इसको बोलते हैं एसीएम. सीमेंटाइट का फॉर्मेशन है यहाँ पर है, देखिए एसीएम. तो ये 3-4 लाइनें हैं जो कि डील करती है हीट ट्रीटमेंट को. यहाँ पर स्टील हो गया, 2% की इधर स्टील, 2% सुपर कास्ट आयरन. ठीक है. यहाँ पर देखिए ल्यूडोबराइट बनता है, यूटेक्टिक बनता है ल्यूडोबराइट. यहाँ पर यूटेक्टाइट बनता है परलाइट. यहाँ पर पेरिटेक्टिक बनता है डेल्टा. तो देखिए यहाँ पर हमने जब प्योर आयरन, जब रूम टेम्परेचर पर, यहाँ पर अल्फा आयरन था, इसमें फेराइट था, हमने इसको गर्म करना शुरू किया, तो धीरे 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 ये ऊपर अपर क्रिटिकल टेम्परेचर पर जब पहुंचा प्योर आयरन, ये बन गया गामा आयरन. यहाँ पर देखिए अल्फा आयरन था, इसमें प्योर अल्फा आयरन था, ये अल्फा है. यहाँ पर पहुंचा जब, ये गामा आयरन बन गया. और गर्म करते करते जब यहाँ पहुंचे तो यहाँ से डेल्टा आयरन बन गया. तो देखिए एक ही स्ट्रक्चर, एक ही एलॉय अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग फेस, अलग अलग क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर दे रही है. जैसे इसको बोला हमने अल्फा आयरन, इसमें बीसीसी स्ट्रक्चर है. ठीक है. इस ऐसे ऐसे आप समझ लो करीब 16 स्ट्रक्चर होते हैं इसमें, क्लोज पैक स्ट्रक्चर. उसमें बीसीसी जैसे है, बीसीसी हो गया, ये हो गया एफसीसी, फेस सेंटर्ड क्यूबिक. ये हो गया आपका ये भी बीसीसी है. टेम्परेचर, हार्ट टेम्परेचर पे बीसीसी है, हार्ट टेम्परेचर पे बीसीसी, एफसीसी मतलब, अरे बीसीसी जो है डेल्टा, अल्फा जो है डेल्टा बदल जाता है. तो अल्फा, गामा, डेल्टा 3 रूप में आ जाता है स्टील आपका. प्योर आयरन आपका 3 रूप में आ जाता है प्योर आयरन. इस रूप बदलने को एक प्रॉपर्टी होती है, इसको बोलते हैं एलोट्रॉपी ऑफ द आयरन, एलोट्रॉपी ऑफ द प्योर आयरन. तो ये एलोट्रॉपी का गुण है कि अलग अलग टेम्परेचर पर आयरन अलग अलग स्ट्रक्चर, अलग अलग यूनिट सेल स्ट्रक्चर दे देता है. ठीक है. देखिए ऑस्टेनाइट, फेराइट, डेल्टा आयरन एंड सीमेंटाइट, ये 4 फेज, ये सब फेज है. इतना ही जानिए आप, बाकी आगे बढ़ते हैं. ठीक है. अब देखिए जैसे इसमें देखिए ये जो है, ये हमने फेज डायग्राम बताया. अब हम फेज डायग्राम खत्म करके जैसे ऑस्टेनाइट सॉलिड्स, अब हम आगे बढ़ते हैं. देखिए ये डिक्रीजिंग डक्टिलिटी. ठीक है. अब देखिए ये जैसे एफसीसी स्ट्रक्चर है, ये 3, वैसे मैं बताया ना आपको 16 पर माइट बी देयर आर 16 क्लोज पैक स्ट्रक्चर, जो भी पैक स्ट्रक्चर है, यूनिट सेल है, उसमें ये 3 बहुत कॉमन है. और डक्टिलिटी देखिए एफसीसी सबसे ज्यादा डक्टाइल होता है. इसीलिए हम हीट ट्रीटमेंट जब करते हैं ना भैया, उसको जब गर्म करते हैं तो गर्म करके हम ले जाते हैं इस फेस में. हीट ट्रीटमेंट कोई भी करते हैं जहां प्रॉपर्टी चेंज करने की जरूरत पड़ रही है, उसको हम इस फेस तक गर्म करते हैं, आप जान लीजिए. तो ये सबसे ज्यादा डक्टाइल फेस है. ठीक. उसके बाद ये एल्युमिनियम है, कॉपर है, गोल्ड है, सिल्वर है, इरिडियम है, लेड है, निकिल है, प्लेटिनम एंड सिल्वर है. तो ये सब इसमें आते हैं एफसीसी स्ट्रक्चर में. ठीक है. बीसीसी में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, क्रोमियम, बेरिलियम, अल्फा आयरन देखिए, अल्फा आयरन एंड टंगस्टन. एससीपी में बेरिलियम, कैडमियम. तो ये डक्टिलिटी चेंज है. आयरन में क्या होता है, बीसीसी होता है. रूम टेम्परेचर पर बीसीसी है. जैसे एल्युमिनियम में रूम टेम्परेचर पर एफसीसी होता है, आयरन में रूम टेम्परेचर पर बीसीसी है. जब इसको गर्म करेंगे, जहां हम 723 के ऊपर उठे, 910 के ऊपर गए अपर क्रिटिकल टेम्परेचर, तो ये एफसीसी बन जाएगा. लेकिन एफसीसी सस्टेन नहीं करता है, एफसीसी हॉट में बनता है. जब जहां ठंडा हुआ रूम टेम्परेचर पे ये बन जाएगा. नाउ दिस इज द हीट ट्रीट. अब हम हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस पे आते हैं. ये हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस बाय द एप्लीकेशन ऑफ हीट ट्रीटमेंट बस जस्ट वी प्रोवाइड softening or hardening of the metals through which, and grain refinement and microstructure change. We change the grain structure of the metals, through which we can change the property of the metals, because grain structures possess the property of the metals.
ग्रेन स्ट्रक्चर ही सारा डिपेंड करता है, ग्रेन स्ट्रक्चर पे डिपेंड करती है प्रॉपर्टी, मेटल प्रॉपर्टी उसकी डिपेंड करती है. सो वी जस्ट रिफाइन द ग्रेन स्ट्रक्चर और नॉर्मलाइज द ग्रेन स्ट्रक्चर वॉट एवर हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस वी आर गोइंग टू डू. फर्स्ट वन इज द एनलिंग. एनलिंग इज द सॉफ्टनिंग प्रोसेस. देखिए जैसे ये है, दिस इज एनलिंग, दिस इज अपर क्रिटिकल टेम्परेचर, ओके, दिस इज एशियम. हम यहाँ से अपर क्रिटिकल एनलिंग, जब किसी भी चीज का एनलिंग करना होता है हमको, तो अपर क्रिटिकल टेम्परेचर, अगर वो यूटेक्टॉइड, हाइपो यूटेक्टॉइड स्टील है, मतलब 0.8% तक कार्बन है उसमें, तो हम उसको अपर क्रिटिकल टेम्परेचर से 20 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस गर्म करते हैं. और इधर है तो लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर के 20 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म करते हैं. उसके बाद उस टेम्परेचर पर उसको रोक देते हैं, सोक कराते हैं. जैसे बताया सोक कराना 1 घंटे का, 1 घंटे का, एज वेल एज वट एवर रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी, वट एवर प्रॉपर्टी यू नीड एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर, आप इसको, दिस इज एनलिंग प्रोसेस. गर्म किया, फिर उस पर 20 प्लस पे, उसके बाद सोक किया, फिर उसके बाद फर्नेस कूलिंग किया. धीरे धीरे धीरे, जितना धीरे धीरे ठंडा करोगे उतना बढ़िया ये इसका एनलिंग होगा. एनलिंग बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, बहुत स्लो प्रोसेस है, ये बहुत क्रिटिकल, ये 24 घंटा, 48 घंटा, 72 घंटा, ये बहुत क्रिटिकल, बहुत कॉस्टली आइटम्स के, जैसे एरो इंडस्ट्रीज में एनलिंग का ज़्यादा प्रयोग, तो उस तरह जहाँ पर जरूरत हो तो वहाँ पर हम एनलिंग करते हैं. उसके बाद नॉर्मलाइजिंग है, ये भी ऐसे हमारा है. नॉर्मलाइजिंग देखिए, दोनों को हम अपर क्रिटिकल टेम्परेचर एशियम और अपर क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर 50 डिग्री सेंटीग्रेड 50 प्लस हम गर्म करते हैं. उसके बाद सोक करते हैं, फिर उसके बाद ठंडा करते हैं, हवा में ठंडा करते हैं. ठीक है, ये भी सॉफ्टनिंग करता है, लेकिन इतना महंगा प्रोसेस ये नहीं है और स्लो प्रोसेस भी नहीं है. ठीक है, अब स्ट्रेस भी हमने बताया आपको. तो अब आप समझो इसको, देखो जैसे ये जो भी केस आप देख रहे हो, ये सब देखो, सब खाली इतना पोर्शन लिया गया है. ये हमने कहा था ना, आयरन कार्बन डायग्राम ही से ही पूरी पूरी कहानी आपकी बनेगी. तो ये चीज हम आपको बता रहे हैं कि ये इसमें इस तरह से, एनलिंग में इस तरह से करते हैं, नॉर्मलाइजिंग में इस तरह से करते हैं. दिस इज स्ट्रेस रिलीविंग. स्ट्रेस रिलीविंग को हमेशा लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर के नीचे गर्म करते हैं. क्योंकि हम स्ट्रेस रिलीविंग में देयर इज नो रिक्वायरमेंट टू चेंज द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपोनेंट. हमें कंपोनेंट की प्रॉपर्टी नहीं चेंज करनी है, ये ध्यान रखिएगा. हमेशा लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर के नीचे इसीलिए हम करते हैं. जैसे हमने 640 डिग्री सेंटीग्रेड आपको दिखाया था, वहां पर क्या होता है, जो इंटरनल लॉकअप स्ट्रेसेस हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं, वो मिनिमाइज हो जाते हैं. स्ट्रेसेस होमोजेनाइज हो जाते हैं, होमोजीनियस हो जाता है चारों तरफ. लोकलाइज स्ट्रेस, कहीं मोटी वेल्डिंग है, कहीं जैसे वेल्डिंग का कोई प्रोडक्ट आपने लिया, कहीं आपने ज्यादा वेल्डिंग किया, कहीं आपने कम वेल्डिंग किया, तो लोकल स्ट्रेस डेवलप हो गया उसमें. जो लोकल स्ट्रेस डेवलप हुआ, अगर ऐसे ही आप ले जाके काम प्रोसेस करना शुरू कर दोगे, अगला प्रोसेस मशीनिंग करना शुरू कर दोगे, तो देयर माइट बी द क्रैक, देयर माइट बी द ओपन ऑफ द वेल्डिंग ज्वाइंट. इसलिए उसको हम क्या करते हैं, हीट ट्रीटमेंट करके, स्ट्रेस रिलीफ करके, उसको हम उस स्ट्रेस को मिनिमाइज करते हैं या होमोजेनाइज करते हैं. ओके, सो दिस इज द स्ट्रेस रिलीविंग ऑपरेशन. हम इसको क्रिटिकल टेम्परेचर के नीचे करते हैं. स्पोटराइजिंग जैसे है, स्पोटराइजिंग का मतलब आप एनलिंग, जैसे आपने स्ट्रेस रिलीव किया, ऐसे इसके नीचे भी गर्म कर सकते हैं थोड़ा सा हम. अगर इस दिख रहा है ना, ये रेंज है उसका, हाइपो यूटेक्टाइल, हाइपर यूटेक्टाइल दोनों के लिए. और इसके ऊपर करते हैं, इसमें क्या करते हैं कि जो आपका ग्रेन स्ट्रक्चर है, जो ग्रेन डिस्टॉर्टेड है, वो शेप में मतलब बिल्कुल ग्रेनुलर हो जाता है, बिल्कुल मतलब बिल्कुल शेप में आता है. तो इसलिए हमने आपको बताया कि ट्रांसफॉर्मेशन 723 के ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाता है, ग्रेन ग्रोथ शुरू हो जाता है. तो नॉर्मलाइजिंग, फुल एथनिंग, स्ट्रेस रिलीविंग, दीज आर द बेसिक ऑपरेशन, हीट ट्रीटमेंट ऑपरेशन. नाउ नॉर्मलाइजिंग एप्लीकेशन, स्टील विथ 2% कार्बन, 0.2% कार्बन. ऑब्जेक्टिव क्या है, टू एलिमिनेट कोर्स ग्रेन. हमने बोला ना, नॉर्मलाइजिंग में अगर कोल्ड वर्किंग किया है, थोड़ा चोट मारी गई है उस पर, तो उसका ग्रेन डिस्टर्ब हो गया है. Eliminate coarse grain structure obtained during forging, rolling and stamping. Improve machinability of hypoeutectile steel. Hypoeutectile मतलब ये, ठीक है. To reduce internal stresses, to increase homogeneity. हमने कहा homogeneity बढ़ाता है. देखिए A3 को 50 प्लस और ACM पे 50 प्लस, जैसा मैंने बताया, दिस इज A3 50 प्लस, दिस इज एशियम 50 प्लस. गर्म करते हैं, उसके बाद होल्डिंग डिफिनिट पीरियड एज पर द रिक्वायरमेंट, कूलिंग, एयर कूलिंग.
सो दिस इज द नॉर्मलाइजिंग। कन्वेंशनल हार्डनिंग, हार्डनिंग क्या करते हैं कि आप A3 पर 50, A3 को जो A3 में हाइपोइलेक्ट्रिक टाइड में है उसको 50 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस, और जो हाइपो है उसको भी 50 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस करके हम हाइपर टाइड स्टील A1 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करते हैं उसको, और उसके बाद जो है जैसे ये है देखो, दिस इज एनलिंग। ये हार्डनिंग का भी यही है। आप इधर देखो 50 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस, यहाँ पर हम 20 करते थे एनलिंग में और बहुत देर तक ठंडा करते थे। इसमें 50 डिग्री प्लस इधर किया और 50 डिग्री प्लस इधर किया। उसके बाद वाटर क्वेंचिंग कर दिया। वाटर क्वेंचिंग करते हैं तो उसमें मार्टेसाइट का फॉर्म रहता है। जैसे मैं बताऊं आपको कि ये देखो, जैसे ये फेस है, हमने यहाँ तक गर्म किया, गर्म करके अगर अगर मैं धीरे धीरे ठंडा करता तो जो जो फेस बनता हुआ गया था वो सब फेस बनते बनते धीरे धीरे आते, लेकिन हमने यहां से डाल के तुरंत पानी में डाल दिया। तो ये जो आपकी लाइन है 250 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे, ये मार्टेसाइट की लाइन है, इसके नीचे मार्टेसाइट बनता है। अगर आपने क्वेंच कर दिया, इस टेम्परेचर में आ गए तो मार्टेसाइट फ्रेम हो गया। और मार्टेसाइट इज द हार्डेस्ट, हार्ड तो हो गया लेकिन वो उसका जो ग्रेन स्ट्रक्चर है वो निडल शेप में है, कोई इसमें क्रिस्टल स्ट्रक्चर नहीं है। तो निडल शेप में है तो वो ब्रिटिल हो जाएगा वो, इसलिए उसको हम उसके बाद टेम्परिंग करते हैं। टेम्परिंग का मतलब क्या हुआ कि टेम्परिंग का मतलब ये हो गया कि हम गर्म करके री हीटिंग करते हैं, फिर ठंडा करते हैं, उसको धीरे धीरे ठंडा करते हैं। ठीक है, टेम्परिंग करते हैं। इसीलिए कहा था हार्डनिंग ऑलवेज फॉलो विद टेम्परिंग। हमने बोला हाइपोइलेक्ट्रिक टाइड ऑलवेज हार्डन अबव A3 एंड नॉट A1 A3। A3 के ऊपर हाइपोइलेक्ट्रिक टाइड को, हाइपोइलेक्ट्रिक टाइड ये हो गया इसको A3 के ऊपर, A3 मतलब दिस हमने दिखाया आपको, ये A3, दिस इज A3। ठीक है, उसके बाद देखिए हाइपर इलेक्ट्रिक टाइड को A1, हाइपर इलेक्ट्रिक टाइड दिस इज A1, दिस इज A1। यहां से ये गर्म किया 50, उसके बाद यहां अगर इसमें कहा है तो यहां तक गर्म करेंगे, फिर ठंडा करेंगे, क्वेंच करेंगे। ठीक है, उसके बाद हाइपोइलेक्ट्रिक स्टील आर नेवर हार्डन फ्रॉम एशियम। अब हाइपर स्टील आर नेवर हार्डन फ्रॉम एबव एशियम। हमको A1 पे रखना है उसको, एशियम के ऊपर नहीं जाना है, जो कि नॉर्मलाइजिंग करते हैं, ऐसा नहीं करना मेरे को। ठीक है भाई, सो दिस इज द हार्डनिंग। अब टेम्परिंग देखिए, हार्डनिंग टेम्परिंग बता दिया। हार्डनिंग जब हम करते हैं, क्वेंच कर देते हैं, क्वेंच करते हैं तो उसमें परलाइट, बेनाइट, ये सब बनने का जो बीच के फेसेस बनते हैं वो नहीं बनता, डायरेक्ट पानी 250 नीचे आता है। 250 नीचे आ गया, 250 नीचे मुंह आगे बैठा है कौन, मार्टेसाइट, वो फट से मार्टेसाइट बन जाएगा। और मार्टेसाइट जहां बना, मार्टेसाइट का स्ट्रक्चर आप देखोगे तो सुई की तरह उसमें ग्रेन्स होते हैं, वो ग्रेन ब्रिटिल भी होते हैं। उस ग्रेन को वो इतना मजबूत होते हैं, हार्ड होते हैं वो, उसको हम यूज करते हैं, उसके हार्डनिंग को, हार्डनिंग की सैक्रिफाइस थोड़ा सा कर देते हैं। कैसे, टेम्परिंग करके। टेम्परिंग मतलब जो हार्डेंड स्टील है उसको हम गर्म करते हैं, गर्म करते हैं। अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड से 200 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किए, इसको लो टेम्परिंग बोलते हैं। गर्म करके उसको आधे घंटे 1 घंटे, उसको 1 से 2 घंटे उसको हमने ठंडा कर दिया, एयर कूलिंग। फिर उसका मार्टेसाइट जो है थोड़ा सा नॉर्मल हो जाएगा, उसके अंदर के तनाव जो है खत्म हो जाएंगे, आप उस पर काम कर सकते हो, बट दैट वुड बी हार्ड स्टील। ठीक, मीडियम टेम्परेचर टेम्परिंग 200 से 500 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म करो, उसके बाद 1 से 2 घंटा करो, उसके बाद एयर कूलिंग कर दो। 507 पे करोगे तो हाई टेम्परेचर टेम्परिंग हो गया ये। ठीक है, तो दिस इज द रिलीव इंटरनल स्ट्रेसेस प्रोड्यूस ड्यूरिंग हार्डनिंग। हार्डनिंग टाइम में जो इंटरनल स्ट्रेसेस निकाले गए हैं उसको निकाल देता है। रिड्यूस हार्डनेस, रिड्यूस हार्डनेस, जो हार्डनेस आया है मार्टेसाइट का वो कम कर देता है। इंक्रीज डक्टिलिटी एंड टफनेस, डक्टिलिटी टफनेस यही हमारा ऑब्जेक्टिव है टेम्परिंग का, टू इंक्रीज डक्टिलिटी एंड टफनेस ऑन द सैक्रिफिकेशन ऑफ द हार्डनेस। ठीक है, स्टेबलाइज स्ट्रक्चर, जो स्ट्रक्चर सुई नोच के साथ फट फुट गया है वो सब बन जाता है। एलिमिनेट रिटेंट ऑस्टेनाइट, रिटेंट ऑस्टेनाइट हम बताया आपको। रिटेंट ऑस्टेनाइट मतलब क्या हुआ कि आप देखो कि ये जो है, जब हमने यहां से लाकर ठप से ठंडा कर इसमें ला दिया तो ये जो ऑस्टेनाइट था ये कहीं बदल नहीं पाया, परलाइट ये भी आ गया, रिटेंड हो गया। तो टेम्परिंग करके हम जब गर्म करते हैं तो ये भी इसमें बन जाता है, परलाइट में चला जाता है। तो ये भी हम करते हैं इसमें। ठीक है भाई, तो ये हो गया आपका टेम्परिंग। अब देखिए रिव्यू ऑफ सरफेस हार्डनिंग।
हम रिव्यू क्यों लिखे सरफेस हार्डनिंग? व्हाट इज सरफेस हार्डनिंग एक्चुअली? देखिए हार्डनिंग जो होता है, हमने बताया हार्डनिंग में हम क्वेंचिंग करते हैं, कंपोनेंट को हीट करते हैं, हीट करने के बाद ऑस्टेनाइटिक फेज तक हीट किया, उसके बाद थोड़ी देर तक सोक किया, सोकिंग दिया मतलब आइसोथर्मल हीटिंग किया, फिर उसके बाद तुरंत हमने कूलिंग, जिसे मैंने आपको दिखाया था क्वेंच कर दिया, तो मौका नहीं बना बीच के एलिमेंट बनने के लिए, डायरेक्ट बन गया क्या, मार्टेनसाइट बन गया। तो हम जब हमको मान लीजिए किसी कहीं सरफेस हार्डनिंग करते हैं, जैसे कैम साफ्ट हमारा है, कैम साफ्ट में लोब है जो उसका, अब लोब अगर हम अगर हमको लोब का जैसे हमें हार्डनिंग करना है, क्योंकि लोब के सरफेस को हमको वियर रेजिस्टेंस बनाना होता है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, टू मेक द वियर रेजिस्टेंस ऑफ द सरफेस ऑफ द लोब। तो उस लोब के सरफेस को अगर आपको बनाना है, वियर रेजिस्टेंस बनाना है, तो अब पूरे कैम साफ्ट का अगर आप हार्डनिंग करते हो, दैट इज वेस्टेज, वो तो बहुत ज्यादा नुकसान आपका। इसलिए सरफेस हार्डनिंग का कॉन्सेप्ट आया कि थोड़ा सा हार्डनिंग आप कर सकते हो। जैसे आप देखो, अच्छा सरफेस हार्डनिंग का क्या मतलब हुआ, आप देखो इसमें बताऊं आपको, ये देखो जैसे ये है, इसमें देख रहे हो इतनी बड़ी पहिया है, हमें इससे कोई मतलब नहीं, हमको खाली इसको सरफेस हार्ड करना है, इस सरफेस को हार्ड करने में थोड़ा सा पैसा खर्च होगा, इसको पूरे खर्च करो जो कि बेकार, हमें जरूरत नहीं है इसकी, बिकॉज हियर वियर कम्स, वियर घिसाव होता है इसका, अगर इस सरफेस हार्ड है घिसाव नहीं होगा, सो दिस इज द सरफेस हार्डनिंग। ओके, इसको सरफेस ट्रीटमेंट बोलते हैं। सरफेस ट्रीटमेंट कई तरह से किया जाता है, जैसे कार्बोनाइजिंग है, नाइट्राइडिंग है, साइनाइडिंग है, इंडक्शन हार्डनिंग है। तो इंडक्शन हार्डनिंग और कार्बोनाइजिंग हम लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं। आप देखो इसको, जैसे ये है रिव्यू, अच्छा इसमें करते क्या है, इसमें हम करते ये है कि जैसे हमने गर्म किया एक पट्टी, जैसे इंडक्शन हार्डनिंग की बात करते हैं, इंडक्शन हार्डनिंग में देखिए ये नाइट्राइडिंग कार्बोनाइजिंग ये सब सरफेस ट्रीटमेंट है, बट दिस इज इंडक्शन हार्डनिंग, ये सरफेस हार्डनिंग है, सरफेस का ट्रीटमेंट होता है। कैसे मैं दिखाता हूं आपको, इसमें जैसे कार्बोनाइजिंग है, कार्बोनाइजिंग मतलब क्या होगा, जैसे आपको किसी स्टील को हार्ड करना है, हार्डनिंग करनी है, तो हार्डनिंग के लिए ये जरूरी है कि उस स्टील में कार्बन का परसेंटेज 2.2 या 0.3% से ज्यादा होना चाहिए, तभी आप हार्डनिंग कर पाओगे, नहीं तो वो स्टील क्रैक कर जाएगी, फट टूट जाएगी। अब तो हार्डनिंग के लिए हमें उसमें कार्बन का परसेंटेज बढ़ाना पड़ेगा, कार्बन का परसेंटेज बढ़ाना पड़ेगा, तो उसको हम क्या करते हैं, कार्बोनियस एटमॉस्फेयर में उसको रख देते हैं। जैसे कोयला, कोयला हमने एक कंपोनेंट डाल दिया, नट बोल्ट जैसे आपका है, नट बोल्ट हमने उसमें डाल दिया और कोयले में बंद कर दिया, उसके बाद 12 से लेकर 72 घंटे तक हमने उसको उसमें रखा, तो क्या हुआ, फिर उसके बाद निकाला, तो हम पूरे मटेरियल, पूरे बोल्ट का पूरे कंपोनेंट जो उसके अंदर था उसका हार्डनिंग इतना हो जाएगा। कार्बोनाइजिंग मतलब उसमें कार्बन घुस गया, कार्बन हार्डनेस क्रिएट कर देता है कार्बोनाइजिंग, तो उसमें हमने ये कर दिया, कार्बन हमने डाल दिया उसमें। अब उसके बाद हम हार्डनिंग और चाहिए तो और हार्डनिंग कर सकते हो आप प्रोसेस से, जैसे नाइट्राइडिंग है, NH3 के माहौल में रखते हैं, अमोनिया के माहौल में रखते हैं इसको। अब जैसे इंडक्शन हार्डनिंग में दिखाता हूं आपको, इंडक्शन हार्डनिंग का क्या मतलब हुआ, ये देखिए ये सरफेस हार्ड कर दिया खाली, ठीक है ना, ये देखिए सरफेस खाली हार्ड, जैसे गियर है, गियर का टीथ है, गियर का टीथ बिकॉज एक दूसरे के ऊपर रब करते हैं, तो वो दैट इज सफर विद द वियर एंड टियर, तो उस वियर को बचाने के अगर हम सरफेस का ट्रीटमेंट कर दें तो ओके, नो बीच के पार्ट्स को, उसके हब को हम टफ ही रखें, ठीक है, टफ रहेगा तो लोड भी एब्जॉर्ब करेगा। तो इसलिए देखो दिस इज इंडक्शन हार्डनिंग। इसमें क्या करते हैं हम, देखिए कि ये देखिए कि दिस इज वर्क पीस, इसमें हम ऑस्टेनाइज्ड सरफेस लेयर हार्डेड है, हम ऑस्टेनाइज तक इसको गर्म करते हैं, इस वर्क पीस को ऑस्टेनाइड में दिखाना 910 ऑस्टेनाइडिक स्टेज चले जाते हैं। ये देखिए फिल्म से गर्म कर रहे हैं, ये गर्म करता हुआ चला आ रहा है, इसके जैसे गर्म ऑस्टेनाइज इसमें पहुंचा, पीछे देखिए वाटर नोजल लगा हुआ है, ये वाटर नोजल ऑटोमेटिक, सब सिस्टम ऑटोमेटिक है, विद इन सेकेंड ये स्टार्ट हो जाता है। ये मतलब समझ लो 10 सेकेंड 12 सेकेंड हमने गर्म किया इसको, उसके बाद ये बंद, उसके बाद ये क्वेंचिंग, इसको क्वेंचिंग ऑपरेशन बोलते हैं, वाटर नोजल वेब, इमीडिएट वाटर का फुहारा आता है और ये हार्ड हो गया, ये सरफेस देखिए हार्ड हो गई। सो दिस इज इंडक्शन हार्डनिंग। अब इंडक्शन हार्डनिंग कैसे करते हैं हम, इसको हम मैग्नेटिक क्वाइल होती है, मैं दिखाता हूं आपको, देखो
सो दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द हार्डनिंग, इंडक्शन हार्डनिंग, कि क्वेंचिंग पहले हमने फ्लेम्स हीट किया, इमीडिएट क्वेंच कर दिया। ये 1 सेकंड में काम, मतलब ये पूरा आपका काम 1 मिनट हो जाता है, 20 सेकंड, 25 सेकंड, 40 सेकंड में होता है पूरा काम। सो दिस इज द इंडक्शन हार्डनिंग। जैसे कैम का मतलब कैम का लोग, कैम के लोग को यही इंडक्शन हार्डनिंग करते हैं। आप समझ लो कि 25 सेकंड में हार्डनिंग हो जाती है, कैम की लोग हार्डनिंग होती है, और जितना आरसी चाहिए उस हिसाब से टाइम उसका स्लॉट सेट होता है, हीटिंग का, कूलिंग का। हमने बताया था हीटिंग कूलिंग डिसाइड करते हैं हाउ मच थिकनेस, हाउ मच डेप्थ यू वांट टू बी हार्डेंड इन द सरफेस। सो दिस इज द सरफेस बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सरफेस हार्डनिंग। आप देखो, अरे भाई कहाँ चला गया यार, ये हो गया आपका। ओके, सो दिस इज द इंडक्शन हार्डनिंग। 60 आरसी इसमें पाते हैं, एचआरसी रॉकवेल हार्डनेस हमको मिलता है, सबसे ज्यादा इसी मिलता है। देखिए सबसे इसमें आरसी में सबसे ज्यादा इसमें मिलता है नाइट्राइडिंग 69 एचआरसी, इसमें 50 एचआरसी। तो इस तरह से दीज आर द सरफेस ट्रीटमेंट प्रोसेस। इमेजेस ऑफ गियर टीथ हार्डेंड बाय ए नाइट्राइडिंग। देखिए ये गियर टीथ दिखा रहा है आपका, ए नाइट्राइडिंग है, देखिए सबसे ज्यादा हार्ड ये नाइट्राइडिंग 69 एचआरसी। कार्बोनाइजिंग इंडक्शन हार्डनिंग फाउंडेड, ये इंडक्शन हार्डनिंग का देखिए, देख रहे हैं। तो ये इस तरह से करके हम देखो, एंड इंडक्शन ऑफ हीटर कंसिस्ट ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। ये देखिए इसको हार्ड करना हमको, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है, क्रिएट्स अ हाई फ्रीक्वेंसी अल्टरनेटिंग करंट, हीट्स द कंपोनेंट टू द ऑस्टेनाइजिंग टेम्परेचर, जैसे मैंने पिक्चर आपको दिखाया था अभी, होल्ड्स इट एट टेम्परेचर लॉन्ग इनफ टू कंप्लीट द फॉर्मेशन ऑफ ऑस्टेनाइट। जैसे मैं दिखा था आपको ये सरफेस ट्रीटमेंट दिखा दिया मैंने, कोई बात नहीं, देखो। तो ये जो है हमारा, सो दिस इज द हीटर कंसिस्ट ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, creates a high frequency alternating current, heats the components to the austenitic temperature, holds it at temperature long enough to complete the formation of austenite, then rapidly cools। हमने जैसे दिखाया था आपको, जहां ये टेम्परेचर ऑटोमेटिक सेट है, rapidly cools until martensitic ट्रांसफॉर्मेशन आकर, हमने बोला मार्टेनसाइट 250 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे पहुंच जाएगा तो मार्टेनसाइट बन जाएगा। चेंज स्ट्रक्चर फ्रॉम एफसीसी, एफसीसी आपका ऑस्टेनाइट का स्ट्रक्चर है, और बीसीटी मतलब बॉडी सेंटर टेट्राहेड्रल, ये मार्टेनसाइट का स्ट्रक्चर है, दैट इज वेरी हार्ड। तो सरफेस आपकी बहुत ज्यादा हार्ड हो जाएगी आपकी, ठीक है। सो दिस इज द सरफेस ट्रीटमेंट causes the shear type transformation of the initial structure of steel into martensite। स्लिप कर जाएगा, हम बोले कुछ बनने का मौका नहीं मिलेगा, डायरेक्ट मार्टेनसाइट बन जाएगा। ट्रांजिशन ऑफ स्लिप एंड ट्यूनिंग ऑकर्स। तो ये दिस इज द सरफेस ट्रीटमेंट प्रोसेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दीज आर द, आप बताएं इसके बाद आप समझो हम मार टेम्परिंग, इसके बाद हमारा आता है, देखिए मार टेम्परिंग है, ये हमने जो बताया आपको टेम्परिंग में, मार टेम्परिंग, आस्ट टेम्परिंग। मार टेम्परिंग, आस्ट टेम्परिंग ये ऐसे प्रोसेस हैं कि जैसे मार टेम्परिंग में ऑस्टेनाइट हम, अरे ये क्या बोलते हैं आपको, मार्टेनसाइट बना देते हैं। इसमें हमें जॉब को हार्ड करके अलग नहीं करना होता, टाइम वेस्टेज, टाइम हम रोक देते हैं उसमें। कैसे, हम ऑस्टेनाइट तक गर्म करते हैं, उसके बाद डायरेक्ट हम 250 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म करके उसके बाद आइसोथर्मल हीटिंग कर देते हैं, तो वो मार्टेंट में। ऐसे ऑस्टेम्परिंग का है 350 डिग्री से ऑस्टेनाइटिक स्टेज में जाके 350 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम क्वेंच कर देते हैं, उसके बाद कर देते, तो इसमें बेनाइट बनता है, इसमें मार्टेनसाइट का फॉर्मेशन होता है, इसमें रिफाइंड बेनाइट बनता है। तो आपका समझो जो हार्डनिंग था, जो मार्टेनसाइट का था, वो बेनाइट बन गया ऑस्टेम्परिंग में, और टाइम भी नहीं लॉस हुआ आपका कि हार्डनिंग से निकाला आपने, फिर तैयारी किया टेम्परिंग करने का, नो नीड, डायरेक्ट यू कैन डू ऑस्टेम्परिंग इन द फर्नेस। So this will remain, this will save the time, and this will formate the benite, fine benite, that is very ductile material. So मैरेजिंग स्टील होता है, मैरेजिंग स्टील एरोस्पेस इंडस्ट्री में हम यूज करते हैं। सो दीज आर द हार्डनिंग हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस जो मैंने आपको बताया सारा, अब इसमें ये हो गया। सो दिस इज द okay, this is all about heat treatment process, and I think you will be more your concept will be clear what the heat treatment is actually. Thanks a lot.